Namaste everyone and welcome to Supergrad Cat. Today is 6th of October and there are exactly 50 days left for the D-Day. And when I say D-Day, I mean the CAT 2023 exam date. So there are 50 days left, but just ऐसे ही 2 मिनट के लिए फर्ज करो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कैट एग्जाम कल है, आर यू रेडी? इमेजिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि अगर कल कैट एग्जाम हो जाए तो आर यू रेडी? फॉर अ लॉट ऑफ अस अ बिग नो वुड बी द आंसर. So then what is it that we can really do in the next 50 days जिससे कि हम एग्जाम रेडी हो पाए? What is it that we can do so that on the 25th of November we can say that hey, bring it on, I am ready to face the cat tomorrow. So क्या करें और कैसे करें? This session is all about that. So 50 days left for cat. Let's understand the strategy that we can have in place so that we are able to nail the exam. Let's move ahead. So first thing that we'll take up in this regard is understanding a broad plan of action. Then we'll take up something specific with regards to your preparation in a detailed manner with regards to subject-wise inputs, with regards to previous year's papers, and so on. So let's start first with the part on strategy. Now, I've said this earlier in my videos as well. I'll repeat it again here. Strategy is one of the most overused words in the English language, and it is more often than not misused as well. So then what is it that we'll talk about when we talk of strategy here? तो जब भी मैं strategy term use करूंगा, I'll be giving a more generic view of things rather than giving you specifics. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इस तरह का कुछ स्टडी प्लान मिल जाएगा वेयर आई टेल यू एट व्हाट टाइम टू गेट अप, वेदर टू डू स्पेसिफिक थिंग इन द इवनिंग, किस टाइम पे आप क्या चीज प्लान करेंगे, इस तरह का डिटेल सेटअप, ब्रेकफास्ट किस टाइम पे करेंगे, इज नॉट समथिंग दैट you will expect from me in this video. I'm not going to share that because I think every individual is smart enough to decide a daily plan of action for him. So this is not something that I'm going to cover. Similarly, I'm not going to give you a detailed plan कि Monday को आप ये करें, Tuesday को ये करें. I think these are childish things. You're smart enough to understand these things on your own. When I say strategy, what I mean is give you a general track or a plan of action that you can customize as per your own needs so that you're able to maximize your percentile and get that coveted B school ka call. Right? So let's start first with the part on the Red Book of CAT. Now, when we say Red Book is a very famous term used for the compilations of the famous Swiss psychiatrist and psychoanalyst Carl Jung. Although ये term वहां से inspired है, what I really mean when I say the Red Book of CAT, it will be a book जिसमें बहुत सारे compilations होंगे आपकी preparation के notes के. When I say compilations, it can be a formula book that you typically use. उसी को आप नाम दे सकते हो Red Book का. The idea is it will contain the very essence of your CAT preparation, which will include things like all the shortcuts, formulas. There are a lot of standard question types in QA, and we'll discuss that as we go along. कि उन standard question types के लिए क्या approach हो सकती हैं, क्या shortcut हो सकते हैं. We'll cover all that. Similarly, important learnings from mocks. I'm sure you would have attempted a lot of mocks by now and you're going to attempt a lot of mocks in the coming future. तो जब भी आप मॉक लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उनसे जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हमें मिलती है वो हम जॉट डाउन करेंगे इस पर्टिकुलर बुक में. सिमिलरली anything else that inspires you, it can be a quotation from someone, it can be some press conference of a famous celebrity, anything and everything that inspires you to work harder, you can include that as well. Why am I saying that you create a Red Book of CAT where you include all these things in a personalized form for you? It can include vocabulary related inputs, it can include concepts or jargons in some of the difficult RCs that you would have encountered. ये सारी चीजों का compilation इसमें हम क्यों रखें? Because this is one book that you will carry wherever you go. You know, बहुत बार एक चैलेंज आता है कि पढ़ते तो हैं हम, बट जब एग्जाम का टाइम आता है, जब मॉक लिखते हैं एक्चुअल एग्जाम में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल. कई बार यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म सेइंग कि एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ. व्हाट इज इट दैट it takes so that exam में click हो पाए? I think a very simple and cliched answer: revision. And how do you do revision? When you have something to revise or fall back on. And this book, this particular notebook जो आप खुद अपनी handwriting में लिखोगे, it will be a manuscript, handwritten script in your own handwriting. This will be a big boost for your preparation. आखिरी के 50 दिनों में, I think this should be your Bible, Gita, everything that you can think of. तो इस बुक में जब आप सारे कंपाइलेशंस करोगे, यू विल कैरी इट एवरीवेयर विथ यू.
दिस विल सर्व गुड पर्पज ऑफ रिविजन. आप इसको रेगुलरली यूज करोगे एंड बिलीव मी आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिविजन यू विल इवन रिमेंबर कि मैंने उस पेज पे राइट हैंड साइड टॉप पे ये पर्टिकुलर नोट बना के रखा था एंड यू विल then be able to realize your true potential when it comes to ability to click in the actual mocks. Why am I starting with this part of the red book formula book से मैं क्यों start कर रहा हूँ? Because there'll be a lot of inputs that I'll be giving in the coming few minutes that you will be able to add in the same book. ठीक? So I hope this part is clear. आगे बढ़ते हैं. After the red book, let's take up the discussion for subject wise preparation. So subject wise preparation में broadly तीन areas को हम cover करेंगे, VRC, DLR and QA in that order. जिस order में CAT आता है. Let's start first with VRC. अब VRC section को थोड़ा सा simplify करते हैं. लास्ट ईयर का अगर कैट का पेपर देखो तो ब्रॉडली देयर आर ओनली 4 एरियाज. एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैरा समरी के क्वेश्चन है, यू हैव पैरा जंबल्स एंड देन मिसिंग सेंटेंस या पैरा कंप्लीशन का फॉर्म कह लो. लास्ट ईयर देयर वर 2 न्यू क्वेश्चंस ऑन द पार्ट ऑफ मिसिंग सेंटेंस. माय क्वेश्चन इज एट दिस पॉइंट इन टाइम आफ्टर अपीयरिंग इन सो मेनी मॉक्स एंड ऑल, बहुत सारे लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि उनका वीए का पार्ट स्ट्रांग है, अभी आरसी का पार्ट स्ट्रांग है, 2 आरसीज या 3 आरसीज अटेम्प्ट कर पाते हैं, वीए के कुछ क्वेश्चंस कर पाते हैं, पैराजंबल शायद नहीं कर पा रहे. देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर हेड. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इज इट ओके इफ यू डिसाइड ऑन दिस पार्ट कि मैं वीए में पैराजंबल्स नहीं करूंगा? इज दिस अ राइट वे टू थिंक 50 डेज बिफोर कैट कि पैराजंबल्स तो गलत ही होते हैं बिकॉज ऑप्शन नहीं रहते. सो 2314 में मैं एक ही सेंटेंस गलत करता हूं बट वो गलत तो हो ही जाता है, ऑल्दो नेगेटिव मार्क्स नहीं है बट टाइम तो वेस्ट हो रहा है. रादर देन दैट आरसी में मेरी एक्यूरेसी अच्छी है तो आई विल इग्नोर पैराजंबल्स, मैं सिर्फ आरसी कर लूंगा. सिमिलरली मिसिंग सेंटेंस पैरा कंप्लीशन में गलती हो जाती है, मैं वो छोड़ दूंगा. इज इट वर्थ अ रिस्क टू स्किप क्वेश्चंस ऑफ पैराजंबल्स? इज इट वर्थ अ रिस्क टू स्किप क्वेश्चंस ऑफ मिसिंग सेंटेंसेस? I'll tell you my logic and then you can decide on your own whether it makes sense to you as well. Do you know कि कौन सी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे? इज इट पॉसिबल कि पैराजंबल थोड़ा इजी लेवल का आ जाए? आए भी हैं कैट में इन द लास्ट फ्यू इयर्स कुछ पैराजंबल्स बहुत इजी है जहां पे ऑप्शंस नहीं भी हैं तो भी आप एक कोहेरेंट ऑर्डर बड़ी इजीली बना सकते हो. एंड कंपेयर दैट विद अ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग आरसी व्हिच वाज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन लास्ट ईयर कैट. तो अगर एक डिफिकल्ट चैलेंजिंग आरसी है और आपने अगर ये अपना माइंडसेट ही बना लिया है कि कैट में आरसीज ही अटेम्प्ट करूंगा, वीए में पैराजंबल्स और डिफिकल्ट क्वेश्चंस छोड़ दूंगा या ट्रिकी है तो आई स्ट्रेट अवे लीव देम विदाउट इवन बॉदरिंग टू गिव देम अ ट्राई, देन इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. आपका पूरा डिसीजन मेकिंग, नॉट जस्ट फॉर वीआरसी, दिस इज इक्वली ट्रू फॉर ऑल सेक्शंस, योर एंटायर डिसीजन मेकिंग एंड कैट इज टिपिकली अ गेम ऑफ डिसीजन मेकिंग. आपका पूरा डिसीजन मेकिंग शुड रेस्ट on the merit of the question. पैराजंबल है इसलिए छोड़ना है stupid. पैराजंबल है डिफिकल्ट है पढ़ लिया है इसलिए छोड़ा है, मेक सेंस. पैराजंबल इजी था ऑल्दो इट इज नॉट वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गर एरियाज बट इजी था तो अटेम्प्ट करा, सही भी हो गया. अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स मोर सेंस. तो देन योर एबिलिटी टू पिक क्वेश्चंस शुड बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट रादर देन, एंड ऑब्वियसली व्हेन आई से मेरिट, अगर डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट लग रहा है स्किप कर देंगे, अगर लग रहा है इजी मॉडरेट है डुएबल है कर देंगे. सो अंडरस्टैंड पहला पार्ट. 50 दिन बचे हैं, मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल विथ ऑल 4 एरियाज. आरसी के साथ हम कंफर्टेबल हैं, पैरा समरी कंफर्टेबल हैं, पैराजंबल्स कंफर्टेबल हैं, मिसिंग सेंटेंस कैसा भी क्वेश्चन टाइप आ जाए, माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन इजी मॉडरेट आएगा तो मैं अटेम्प्ट करके सही कर दूंगा. नॉट अ माइंडसेट जहां पे हम स्ट्रेट अवे पहले से प्री कंसीव्ड नोशन बना के चले जाएं कि ये करना है ये नहीं करना है. Now let's come to the part on RCs. I'm not going to tell you कि कितने RCs डेली के प्रैक्टिस करें, that's your call. बट जब भी आप RCs प्रैक्टिस करते हो तो उनकी एनालिसिस में बैकएंड पे क्या एफर्ट डालना है, क्या मेहनत करनी है, उसका छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं. लॉट ऑफ यू बाय नाउ वुड हैव रियलाइज कि अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी या थीम रिलेटेड पैसेजेस आ रहे हैं तो उनमें कॉम्प्रिहेंशन चैलेंजिंग है. लेट्स टेक अप द केस, लेट्स से फिलोसफी बेस्ड पैसेज और साइकोलॉजी, उसमें भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी आ गया. लॉट ऑफ पीपल फील कि इस तरह के पैसेजेस जब भी आते हैं तो कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगता है. पॉलिटिक्स बेस्ड जाते हैं, कुछ लोगों को शायद इजी लगे, कुछ लोगों को पॉलिटिक्स डिफिकल्ट लगे. जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, यू माइट फील इकोनॉमिक्स बेस्ड आरसीज ज्यादा चैलेंजिंग लग रहे हैं कंपेयर टू सम ऑफ द अदर आरसीज. जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, अगर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर कोई सेट आ जाता है जिसमें टर्म्स लाइक क्वांटम एंटेंगलमेंट आ जाता है, जिसके लिए बहुत सारी थ्योरीज अभी पॉपुलर हो रही हैं, यू विल फील कि यू नो दिस इज एन एरिया दैट आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल विद. तो फिर क्या करें? यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि एक पर्टिकुलर थीम या कैटेगरी है जिसके साथ हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है. तो व्हाट इज इट दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू इन सच अ सिचुएशन?
sit down, identify that theme, and make sure that you understand the related jargons of that particular theme in a detailed manner, either with the help of a faculty member that you are in touch with or by researching on your own for few hours, so to say. Let's take an example. Suppose we talk of isms, जितने isms हम commonly encounter करते हैं passages में, like capitalism, communism, socialism, nihilism, existentialism, and all those isms including Nazism, fascism, etc. ये सारे terms अगर हम comfortable नहीं है तो let's sit down with a faculty member, understand these terms at a broad level, so that जब passage in terms को लेकर आएगा तो our speed and ability to comprehend will be already very good. ये एक कैटेगरी हुई, एक थीम हुई. ऐसे पिकअप थीम्स और एरियाज 50 दिन में इमेजिन कि आप ऐसी 10 से 15 थीम्स कवर कर लेते हैं, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल. लॉट ऑफ पीपल फील कि सर अब एंड में क्या हो पाएगा, एंड में यही करना है, बिकॉज आरसीज में प्रैक्टिस करके क्या हासिल हो जाएगा, एक नया पैसेज आएगा हर बार. बट अगर कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है तो विल स्टिल कमिट द सेम मिस्टेक्स. तो मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, ये कैसे ओवरकम होगा, व्हेन वी आइडेंटिफाई कि जो मिस्टेक्स हुई है उनके रीजन क्या थे. A lot of times poor comprehension is the reason. How to improve comprehension? By working on it. तो ये part clear है. Once this part is done, then after identifying themes, I'll strongly recommend to you to identify question types as well that you are getting wrong. Now let me elaborate on this as well. जब हम question types की बात करते हैं, lot of us feel a set of challenges जब double negatives या triple negatives आ जाते हैं question में. For example, let's create a question. Which of the following is not one of the points that the author is not likely to agree with? Repeat कर रहा हूं question. Which of the following is not one of the points that the author is not likely to agree with? तो अब इसमें क्या अटेम्प्ट करें, कैसे अप्रोच करें इस तरह के क्वेश्चन को. जैसे ही क्वेश्चन आता है वी टेंड टू फील कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमसे नहीं बनेगा, डबल नेगेटिव्स आ गए. अब एक बहुत सिंपलिस्टिक तरीका बहुत सारे एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि 2 बार नॉट आ गया है, 2 नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आप लाइकली टू एग्री विद पे चले जाओ. मैं रिपीट कर रहा हूं. A simplistic solution that a lot of experts share is कि आप 2 नॉट है, not one of the points that the author is not likely to agree with, not and not will cancel, find an option that the author is likely to agree with, वो आपका आंसर है. Looks very good, लगता है सब लाइफ इज सेट, सब कुछ बढ़िया है. बट अंडरस्टैंड कि अगर ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो बहुत बार यूल फील कि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है that the author is likely to agree with, और फिर कहानी वहीं आके अटक गई कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करें. ऐसा क्यों होगा, ऐसा एक भी ऑप्शन क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज अगर मिल जाए तो देन व्हाट इज द चैलेंज इन दैट. क्रिटिकल रीजनिंग में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसी से डिस्कस करते हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इफ आई से दैट इंडिया डिड नॉट विन, तो कैन यू टेल मी कि रिजल्ट क्या रहा? डिड नॉट विन. तो लॉट ऑफ यू माइट थिंक कि डिड नॉट विन मतलब हार गई, तो इंडिया लॉस्ट. डिड नॉट विन इज नॉट सेम एज लॉस्ट. आई होप ऑल ऑफ यू एग्री. क्रिटिकल रीजनिंग में इतना पार्ट तो कवर करते ही हम बेसिक क्लासेस में, बट स्टिल जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाई इज इट कि डिड नॉट विन इज नॉट इक्वल टू लॉस्ट, बिकॉज विन और लॉस्ट आर नॉट द ओनली टू एग्जॉस्टिव थिंग्स हियर. टीम जीते या हारे यही 2 रिजल्ट्स पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे और आउटकम्स पॉसिबल है. सो व्हेन यू से डिड नॉट विन, हो सकता है कि मैच ड्रॉ हो गया हो, टाई हो गया हो सकता है कि बैड वेदर के कारण मैच वाज कॉल्ड ऑफ, अबैंडन हो गया, तो इंडिया नहीं जीती, ये तब भी ट्रू रहेगा. मैच अबैंडन हो गया तो इंडिया कैसे जीतेगी, नहीं जीती, तो दैट इज स्टिल ट्रू. सिमिलरली बहुत सारी और इररिलेवेंट चीजें भी हो सकती है जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाओ जो मैंने पूछा था. व्हेन यू से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पॉइंट्स दैट द ऑथर इज नॉट लाइकली टू एग्री विद, हो सकता है कि वो ऑप्शन ऐसा मिले जिसमें ऑथर इज लाइकली टू एग्री विद, या हो सकता है इररिलेवेंट वाला ऑप्शन मिल जाए. तो हमें बेसिकली एलिमिनेशन से जाना है, हमें वो एलिमिनेट करते जाना है जिसमें ऑथर एग्री नहीं करेगा. जो बच जाएंगे वो आंसर है, वो बच जाएंगे, जरूरी नहीं कि लाइकली हो सकता है इररिलेवेंट सा ऑप्शन मिल जाए. आई होप यू गेट दिस पार्ट वेरी क्लियर कि क्रिटिकल रीजनिंग में इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो बियॉन्ड द नॉर्मल रीजनिंग एंड थिंक मोर डीप कि क्या और पॉसिबिलिटीज हैं. आप नेगेटिव्स को कैंसिल करके सिंपलिस्टिक तरीका तब अपना सकते हो जब इवेंट्स एग्जॉस्टिव हो. जैसे अगर बोल दिया कि होल नंबर्स में नंबर इवन नहीं है तो गारंटी है ऑड है, बिकॉज अगर होल नंबर है तो इवन नहीं होगा तो गारंटी है ऑड होगा. 2 ही तरह के इवेंट्स है, नाइदर इवन नॉर ऑड पॉसिबल नहीं है होल नंबर्स के लिए. बट जहां एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं मिल रहे, 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, तो एक नहीं होगा तो बाकी 3-4 और पॉसिबिलिटीज आ सकती है, इसका स्पेशल ध्यान रखना है. सो आई वाज कमिंग टू दिस पार्ट ऑन क्वेश्चन टाइप्स
जब हम क्वेश्चन टाइप्स की बात करें तो आइडेंटिफाई कि क्या डबल नेगेटिव्स, ट्रिपल नेगेटिव्स, इस तरह के क्वेश्चन ट्रबल कर रहे हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में इन्फरेंस बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चन ट्रबल कर रहे हैं। कुछ न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स लीस्ट डेप्थ टू द पॉइंट मेड बाय द ऑथर, क्या इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें दिक्कत आ रही है। व्हाट कुड बी अ फॉलो अप क्वेश्चन, क्या इसमें दिक्कत आ रही है। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्ट डिटेल बेस्ड। व्हाट डू यू मीन डायरेक्ट डिटेल बेस्ड? पैसेज में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड बाय द ऑथर। अब नॉट मेंशन्ड मतलब हमें बस ढूंढ लेना है कि कौन सा बोला है कौन सा नहीं बोला है। सम ऑफ दीज क्वेश्चंस आर इजी, सम ऑफ दीज आर ट्रिकी, बिकॉज कुछ एक छोटी सी चीज लास्ट पैराग्राफ में बोलती रहती है, कुछ एक चीज ऑथर ने किसी और ऑथर का रेफरेंस देकर बोली है, वो ऑथर ने खुद नहीं बोली है। तो इमेजिन ऑथर ने किसी फेमस पर्सन को कोट करा है, तो वो बात ऑथर ने नहीं बोली है, वो फेमस पर्सन ने बोली है। हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड बाय द ऑथर, तो ऑथर ने जो बोली है वही ढूंढना है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें समटाइम्स कैन गेट योर क्वेश्चंस रॉन्ग। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप्स, ये 50 दिन में अभी यही काम करना है। नो मैटर द नंबर ऑफ आरसीज दैट यू आर प्रैक्टिसिंग, आई एम श्योर आपके पास ऑलरेडी एक्सपर्ट ज्ञान होगा, रोज के कितने आरसीज करने हैं, कौन से सोर्स से करने हैं। ये सारी चीजें जब आप खुद कर रहे हो तब प्लीज फोकस ऑन द एनालिसिस पार्ट की किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, किस थीम के गलत हो रहे हैं, उनको इंप्रूव करने के लिए मैं एग्जैक्टली रियलिस्टिक तरीके से क्या वर्क करूं। आई होप आई हैव गिवन यू दिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, व्हेन इट कम्स टू डीआईएलआर। तो जब हम डीएलआर की बात करते हैं तो डीआई और एलआर में से a lot of people have this thought कि सर मेरा एलआर स्ट्रांग है। You know, I come across numerous students who share the same feeling. Some very exceptional cases might say कि सर मेरा डीआई स्ट्रांग है, एलआर इतना अच्छा नहीं है। दोनों ही सिचुएशन बहुत खराब है। और ये माइंडसेट या एटीट्यूड होना कि सर मेरा एलआर अच्छा है, एलआर से मैनेज हो जाएगा, इट इज अ ह्यूज गैम्बल दैट यू आर टेकिंग। एंड इमेजिन कैट एग्जाम इस साल तो एक ही बार देने को मिलेगी, अगले साल फिर रिपीट करना पड़ जाएगी अगर ये गैम्बल ले लिया और कुछ गड़बड़ हो गया। आई टेल यू हाउ। In the last few years, the level of difficulty of DLR section is so high कि अगर आप 2 सेट्स अटेम्प्ट करके पूरे पूरे सही करते हैं आउट ऑफ द 4 सेट्स अवेलेबल, यू विल डेफिनेटली क्रॉस 99.3 परसेंटाइल। और वो 2 सेट्स करना 40 मिनट में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सो देयरफॉर अगेन योर डिसीजन मेकिंग एंड एबिलिटी टू पिक सेट्स बिकम सुप्रीम। तो अगर हमें पता है कि हमें सेट्स चूज करने हैं जो इजी मॉडरेट हैं, अगर हम इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे कि एलआर तो मुझसे बन जाता है, और इमेजिन जो 2 डीआई के या 1 डीआई का सेट आया वो इजी आ जाए, और एलआर इतने डिफिकल्ट आ जाए कि अगर आप 35 मिनट भी दे रहे हो तो शायद आपसे एग्जाम में तो ना बने। विद द एग्जाम प्रेशर, पहले 40 मिनट इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद जो स्टेटस रहता है उसकी बात कर रहा हूं। अगेन अ कॉमन प्रॉब्लम दैट लॉट ऑफ अस फेस कि सर एग्जाम में नहीं हो, घर पे आके जब ट्राई करा तो पहली बार में सेट बन गया था। कॉमन फीलिंग दैट लॉट ऑफ अस हैव। अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि इसमें 2 चीजें हैं दैट इज लीडिंग टू अ रॉन्ग कंक्लूजन। पहला पार्ट कि जब हम बोल रहे हैं घर पे आके कर रहे हैं तो एग्जाम का प्रेशर नहीं है। सेकंड, घर पे आके आप सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हो, पहली बार तो आपने क्वेश्चन एक बार तो पढ़ ही लिया था एग्जाम में, सबकॉन्शियसली उसके क्लूज का अरेंजमेंट दिमाग में चल रहा है, और जब घर पे आके कर रहे हो तब इट इज प्रॉब्ली द सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, तब आपका 10 मिनट में हो गया। तो देन इट इज रॉन्ग टू से कि घर पे आके झट से हो जाता है, घर पे आके पहली बार हो जाता है। घर पे आके पहली बार इज एक्चुअली योर थर्ड बार, फोर्थ बार आफ्टर यू हैव ट्राइड इट ट्वाइस और थ्राइस इन द एग्जाम। तो अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि ये वाली फीलिंग प्लीज हटा दो कि डीएलआर आप घर पे आके कर लेते हो तो बन जाता है, एग्जाम में नहीं होता है। एग्जाम में ही करना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस एटीट्यूड से जाओगे कि डीआई मेरा स्ट्रांग नहीं है, मैं एलआर पे फोकस कर लूंगा, इट वोंट वर्क। अब डीआई में किस लेवल की प्रैक्टिस करें? तो वन इज परसेंटेज चेंज। यू विल रियलाइज कि बहुत सारे क्वेश्चंस परसेंटेज चेंज को लेकर पूछे जाते हैं, या फिर एवरेज के कॉन्सेप्ट्स का कहीं ना कहीं यूज होता है। ब्रॉडली ये 2 एरियाज हैं। तो अगर आपका क्यूए में परसेंटेज वाला पार्ट स्ट्रांग है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन परसेंटेज इंक्लूडिंग परसेंटेज चेंज, एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज, परसेंटेज पॉइंट्स, मीनिंग ऑफ परसेंटाइल, ये ब्रॉडली 5-6 कॉन्सेप्ट्स अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो देन यू विल बी एबल टू हैंडल क्वेश्चन टाइप्स इन डीआई, जो डीआई कॉम्प्लिकेटेड सा सेट मिलेगा उसके बाद। सिमिलरली एवरेज वाले अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व इजीली, एंड सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रीड्राइंग पाई चार्ट्स। सो फंडामेंटल्स में एटलीस्ट ये पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए कि इमेजिन डेटा गलत था, गलत डेटा आया था, उससे हमने एक पाई चार्ट बना लिया, अब नया डेटा बना रहे हैं तो पाई चार्ट के एंगल्स में क्या चेंज आएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप आता है पाई चार्ट्स में। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद सच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, डीआई से डर लगना थोड़ा कम हो जाएगा। इफ यू इंक्लूड गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इन डीआई,
because some people consider games and tournaments as a topic to be a part of DA, some people consider it to be a part of LR. I consider it to be a part of logical reasoning because it is more logical than anything else. Numbers या कैलकुलेशन बहुत मिनिमल रहता है, बट इफ यू कंसिडर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इन डीआई देन मे बी दैट इज ऑल्सो वन टॉपिक जिसके फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए. रूट्स एंड नेटवर्क्स कई बार आ जाता है जहां पर यू विल हैव टू सप्लाई अ पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम पाइपलाइंस. फंडामेंटल्स क्लियर कर लो और फिर प्रैक्टिस सिमिलर सेट्स. ये छोड़ के नहीं आ सकते. इमेजिन कोई डीआई में इजी सा सेट आ जाए तो आपको वो एग्जाम में करके आना है. जस्ट बिकॉज वो डीआई था इसलिए छोड़ दिया विल नॉट वर्क. कमिंग टू एलआर, एलआर में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंडेटरी हैं कि आप फंडामेंटल्स क्लियर करके जाओ. यू कैन नॉट से कि वेन डायग्राम मुझे अच्छा नहीं लगता, मैक्सिमम मिनिमम मुझे नहीं आता, इतना डिफिकल्ट है कि एग्जाम में आता है तो मैं छोड़ दूंगा. हिस्टोरिकली कैट में ऐसे सेट्स आए हैं जहां पर अगर आप थोड़ा सा पुश करो खुद को तो सेट पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा वेन डायग्राम का. तो वेन डायग्राम, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, क्यूब्स. इनफैक्ट क्यूब्स से बहुत लोगों को डर लगता है कि क्यूब्स में कितने फेसेस कलर्ड वाले क्वेश्चंस अगर डिफरेंट कलर्स के साथ आ जाएं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेट क्रिएट कर दें, वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. अंडरस्टैंड कि अगर डिफिकल्ट सेट आ रहा है तो किसी भी टॉपिक का आएगा सबको डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर सेट इजी टू मॉडरेट है डिफिकल्ट टॉपिक का तो वो हमें करते आना चाहिए. इन कैट इन द लास्ट ईयर्स वी हैव हैड 2 सेट्स ऑन क्यूब्स जिसमें सिर्फ नंबरिंग करी है क्यूब्स की और आपको उनका एवरेज निकालना है फर्स्ट और लास्ट क्यूब का, समथिंग ऑन दीज लाइंस. वो सेट आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में एक बार प्रैक्टिस करके देखो, यू रियलाइज कि दिखने के लिए बस वो क्यूब्स का सेट है बट एक्चुअल में सेट बहुत इजी है. तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि अगर इजी सेट आएगा भले ही क्यूब्स का हो मैं कर लूंगा, तो देन यू विल हैव ह्यूज रिवॉर्ड्स एट द एंड ऑफ कैट. अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि टॉपिक देख के छोड़ना है देन इट वोंट वर्क. सो प्लीज टेक इट सीरियसली कि आप ब्रश अप कर लें सारे फंडामेंटल्स को. इन द लास्ट फ्यू इयर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगे हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं क्वांट बेस्ड रीजनिंग. व्हाट डू यू मीन क्वांट बेस्ड रीजनिंग? बहुत बार यू विल कम अक्रॉस सेट्स जहां पे न्यूमेरिक टोटल्स करने हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कैट में एक सेट था न्यू डिसीजेस एंड द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन द नेबरहुड्स. 5 दिन का डेटा था, 4 नेबरहुड्स गिवन थे, टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट वर कमिंग और न्यू डिसीजेस दैट वर कमिंग वेर अराउंड 43. आपको वैल्यूज फिल करनी है टेबुलर फॉर्म में और सम टोटल 43 करना है. 2 कंसेक्यूटिव डेज में 1 का इंक्रीज है. इस तरह की कुछ वैल्यूज गिवन रहेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, प्राइम कंपोजिट. यू विल हैव टू जस्टिफाई द कॉन्स्टेंट्स एंड सॉल्व दैट सेट. हाउ डू यू इंप्रूव योर एबिलिटी टू सॉल्व सच सेट्स? बिकॉज ये तो कंप्लीट पजल है. अब पजल्स की प्रैक्टिस पजल्स के थ्रू ही हो सकती है. तो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन दैट आई हैव फॉर यू. इफ पॉसिबल रोज का एक सुडोकू सॉल्व करो. इट विल ट्रेमेंडसली हेल्प यू इन योर एबिलिटी टू क्रैक क्वांट बेस्ड रीजनिंग वाले सेट्स. अगर आप रोज का एक सुडोकू सॉल्व करते हो वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज टू हैव अ ब्रेक एज वेल. जब भी ऐसा लगे कि बहुत हैवी सेशन हो गया है पढ़ने का, ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और उसके बाद सुडोकू सॉल्व कर लिया. मेक इट अ हॉबी. Believe me, your reasoning skills would improve tremendously. Any source, I think even sudoku.com is good enough. If you feel कि वहां पे ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हैं, that makes a lot of sense. कोई दिक्कत नहीं है. Use any source that you feel comfortable with. Going to QA now. QA में एक डाउट आता है कि सर QA का सिलेबस, वैसे तो कैट में कोई सिलेबस डिफाइंड ही नहीं है, बट अगर सिलेबस सोचे तो बहुत सारा है. क्या हम कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं? लेट्स से फंक्शंस एंड ग्राफ, पीएनसी प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हिस्टोरिकली कम आए हैं और टॉपिक भी डिफिकल्ट है. हमने 11 12 में मैथ्स भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है या मैथ्स था ही नहीं. तो कैन वी स्किप सच टॉपिक्स या सारे टॉपिक्स करें? ये क्वेश्चन डायलेमा क्रिएट करता है हमेशा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें लास्ट फ्यू डेज में या सारे टॉपिक्स करें. आई अगेन गो बैक टू माय ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट. टेल मी, आज मुझे बता दो कि 26 तारीख को जब आप कैट लिखोगे तब कौन से टॉपिक से इजी क्वेश्चन आना है और कौन से टॉपिक से वेरी डिफिकल्ट आना है, पहले से बता दो. यू हैव अ डेटा फॉर लास्ट 10-20 ईयर्स. आप एनालिसिस करके बता दो कि कौन से टॉपिक का इजी है, कौन से टॉपिक का डिफिकल्ट है. ये आप नहीं बता सकते. नोबडी कैन टेल यू दिस. कोई भी नहीं बता सकता. जब हमें पता ही नहीं है कि किस टॉपिक का डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट आना है, तो देन वाई हाउ कैन वी टेक दिस रिस्क कि हम कुछ टॉपिक्स छोड़ के चले जाएं? इमेजिन फंक्शंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एंड हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत इजी से सिटर्स कैटेगरी के क्वेश्चन आए जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए. बस पता होना चाहिए कि हाँ ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दैट्स इट. इनका क्या मतलब है? पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के इंटरसेक्शन का मिड पॉइंट टाइप के क्वेश्चन आए और आपको 3 वर्टाइसेस दिए हैं, 4 वर्टाइसेस दिए, मिड पॉइंट निकालना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चंस आए.
बट लॉट ऑफ पीपल हैव दिस एटीट्यूड कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं आता है, छोड़ देंगे। फंक्शंस के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं, हमने फंक्शंस ही छोड़ दिया है तो क्वेश्चन नहीं करें। इमेजिन स्टैटिस्टिक्स जैसा टॉपिक जिसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर्मूला बनता है मोड, मीडियन और मीन के रिलेशन का, अगर आपको वो याद है और इमेजिन उसी पे क्वेश्चन आ जाए, सम पीपल विल लीव दैट क्वेश्चन बिकॉज स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था, मीन मीडियन मोड तो हमने छोड़ दिया है। दिस डज नॉट प्ले वेल इन द एक्चुअल एग्जाम। Therefore, what I am recommending is सारे टॉपिक्स इजी लेवल पे करे होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत प्रैक्टिस करो, कि आप 3-4 दिन फंक्शंस एंड ग्राफ्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड। बट बेयर मिनिमम इतना तो कर सकते हैं कि अगर कोई इजी क्वेश्चन आया उस पर्टिकुलर टॉपिक का तो हम समझ के उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। Because ultimately, out of 22 questions, typically, if you are able to attempt 15 questions, that is wow. I'm talking in a general sense. I'm not talking of 100 percentile. 100 percentile के लिए आपको 21 के आसपास सही करने पड़ेंगे out of 22. But for 99 plus percentile, 15 questions are like wow. 10 क्वेश्चंस 8 से 2 गलत इज ऑल्सो प्रेटी गुड, यू इजिली क्लियर कट ऑफ। तो अगर आपको इस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं देन यू जस्ट नीड टू पिक 7-8 क्वेश्चंस। हाउ विल यू पिक कि 40 मिनट में 8 क्वेश्चन हो पाए? by leaving all the difficult questions. Now difficult does not always mean logic wise difficult हो, difficult can also mean कि time consuming है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, टॉपिक इजी है, समझ में भी आ रहा है, बट सॉल्व करने में 5 मिनट लग जाएंगे। देयर हैव बीन केसेस इन लास्ट फ्यू इयर्स जहां पर इक्वेशन का बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हर कोई ट्राई करेगा, मेहनत करेगा, 5-6 मिनट में आंसर आ जाएगा। बट वो 5-6 मिनट एग्जाम के प्रेशर वाले जब आपके चले जाएंगे जस्ट फॉर 3 मार्क्स, इट विल क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर ऑन यू टू स्किप क्वेश्चंस। उसके बाद वाले आपको लगेगा अब ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, छोड़ दो छोड़ दो। पिक क्वेश्चंस दैट आर जेन्युइनली डुएबल। और वो एबिलिटी कब होगी? जब हम सारे टॉपिक्स के साथ एक बेसिक लेवल पे कंफर्ट एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ब्रॉडली फिर भी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ सेशन, कि फिर भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलें तो दिस इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा और प्रोबेबिलिटी में। आई होप इतना पढ़ के रखा होगा कि पास्ट डेटा डजंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर आउटकम। अगर 10 बार हेड या टेल आप टॉस कर रहे हो और उसमें 9 बार हेड आया है, अनबायस्ड कॉइन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10वीं बार टेल आ जाए? लॉ ऑफ एवरेजेस डजंट वर्क। अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कि ऐसा नहीं होगा कि 9 बार हेड आया तो सारा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, अब टेल ही टेल आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज स्टिल 1/2, दैट इज द केस 10 ट्रायल्स अगो। तो 10 में से 9 बार या 100 में से 99 बार हेड भी आ गया, तो 100वीं बार जब टॉस करोगे तब टेल आने की प्रोबेबिलिटी उतनी रहेगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं, अरिथमेटिक एल्जेब्रा, ये हिस्टोरिकल डेटा पे है, पास्ट में ऐसा पूछा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आएगा? आई लीव दिस लॉजिक टू यू। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बहुत बार क्वेश्चन टाइप्स का इधर कुछ पार्ट या पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता है। आई टेक फ्यू एग्जांपल्स। अगर हम एग्जांपल्स लें, रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन इक्वेशंस में क्वेश्चन की लाइन में रीड करता हूं एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट। A says to B, I am thrice as old as you were when I was as old as you are now. और उनकी एजेस का सम दे देंगे प्रेजेंट में, आपसे पूछेंगे कि ए की एज कितनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। आई एम श्योर अगर आपने कैट की तैयारी करी है थोड़ी भी डिसेंट लेवल पे तो इस तरह का क्वेश्चन आपने डेफिनेटली एनकाउंटर करा होगा। ए सेज टू बी, आई एम थ्राइस एज ओल्ड एज यू वेर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। हिंदी ट्रांसलेशन करें, मैं जब तुम्हारी एज का था तब जो तुम्हारी एज थी उसका 3 गुना मेरी आज की एज है। इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं मिलती है फॉर पीपल हु आर एनकाउंटरिंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई एम श्योर कि क्वेश्चन टाइप समझ में आ गया है। अब ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स में आप ए और बी की एज का रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हो। द फॉर्मूला इज 2n/n+1। एक बार मेहनत कर ली, स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है। जब भी ए और बी की एज का रेशियो पूछेंगे, एन की वैल्यू पे आंसर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल में मैंने थ्राइस एज ओल्ड बोला था तो हमारी एन की वैल्यू हो गई 3, तो 3 2 6/4, 3:2 रेशो आ गया। इमेजिन सम ऑफ प्रेजेंट एजेस इज 50 इयर्स ही है, 3:2 का रेशो है, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस इज 50, तो ए की एज कितनी आ जाएगी? 30, परफेक्ट। बी की 20, क्वेश्चन डन, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड कि ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स अक्रॉस टॉपिक्स आप बना सकते हो। अगर ये फॉर्मूला पहली बार देख रहे हो, आई होप कि रेड बुक ऑफ कैट जो आप बनाओगे खुद की, मेक श्योर कि आप उसमें इस तरह के फॉर्मुलेस इनपुट कर लें। आई होप कि टाइम एंड वर्क में इस तरह के स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू हैव सीन कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन x + 8 days,
बी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन एक्स प्लस बी डेज, और अगर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो एक्स डेज लेते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन टाइप आता है। तो दोनों साथ में मिलके जब करते हैं, एक्स का अगर रिलेशन निकालना हो तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। इमेजिन ये आपको याद है, ये आप अपनी फॉर्मूला बुक में लिख रहे हो, रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो, तो अगर क्वेश्चन आएगा, हो सकता है डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा आ जाए और उसके बाद आगे की स्टोरी हो, देन विद सी दे आर एबल टू कंप्लीट इट समथिंग, फिर वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट विल बिकम अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन 4-5 मिनट का, इफ यू डोंट नो दिस शॉर्टकट। पर अगर ये पता है तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपने देखते से आंसर कर दिया, और फिर रिमेनिंग पार्ट बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो लास्ट 50 डेज में दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू वर्क ऑन। आप मॉक्स ज्यादा ज्यादा देते जाओगे, बहुत सारे शॉर्टकट स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स मिलते जाएंगे, राइट देम डाउन समवेयर जिससे टाइम सेव हो। सिमिलरली टाइम एंड डिस्टेंस में आई एम प्रिटी श्योर अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से प्रिपेयर कर चुके हो अभी तक, यू वुड हैव सीन सच क्वेश्चन टाइप्स। सो ये है t इज इक्वल टू अंडर रूट t1 t2, v1 upon v2 is equal to under root t2 by t1. I leave this here itself. I'm not going to explain this. अगर आपने ये नहीं देखा है, then you are missing out on your preparation big time. Similarly, distance का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ab upon a minus b into t of gap. जितना गैप है टाइम में, अगर वो मल्टीप्लाई कर दें by the a and b are the speeds. These are questions of the type जहां पर आपको ये बोला जाता है कि a जो है वो let's suppose 50 की स्पीड से जा रहा है और 10 मिनट लेट हो रहा है। बी जो है अगले, या इमेजिन ए के लिए सिनेरियो ले लें कि वो अगर 60 की स्पीड कर देता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। सो फॉर दोस क्वेश्चन टाइप्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप लाइक दिस। सिमिलरली प्रोग्रेशंस में आई एम श्योर यू वुड हैव एनकाउंटर्ड दिस पैटर्न, 1 into 2, 2 into 3, बेसिकली nth टर्म n into n+1 की है, तो इसका समेशन कितना होता है डायरेक्टली याद रख लें, n n+1 n+2/3। कई बार ये प्रोग्रेशंस का पैटर्न टाइम वर्क के क्वेश्चंस में मिल जाएगा। टाइम वर्क के क्वेश्चंस में कैसे मिलेगा कि आपको बोल देंगे फर्स्ट पर्सन इज वर्किंग विद अ सर्टेन रेट, सेकंड डे उसके साथ और लोग ज्वाइन कर जाते हैं, और टिपिकली सीरीज का पैटर्न कुछ इस तरह फॉर्म हो जाता है। तो यू नेवर नो कि इस तरह की प्रोग्रेशंस की सीरीज कहां आ जाए। दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स दैट आई हैव टेकन। यू विल कम अक्रॉस 5 to 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स अक्रॉस ईच टॉपिक्स, और अगर ये नहीं मिल रहे देन यू आर नॉट रियली लर्निंग और प्रिपेयरिंग द राइट वे। क्योंकि प्रिपरेशन का पर्पज ये है कि हम एग्जाम में ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। अनलेस यू डू दिस, अगर इंटेलिजेंस का ही गेम होता, लेट मी पुट इट दिस वे, कि इंटेलिजेंस डिफाइन करेगी कि आप अल्टीमेटली कैट में कितना अच्छा करते हो, तो प्रिपरेशन बिकम्स यूजलेस देन। प्रिपरेशन किस चीज की कर रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स पहचान पाए, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट रिकॉग्नाइज कर पाए, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो जल्दी कर पाए। आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि आप इन आखिरी के 50 डेज में फोकस कर सकते हो, विच आर माइंड मैप्स। हाउ मेनी टाइम्स यू वुड हैव सीन कि ज्योमेट्री जब पढ़ रहे हैं तब डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बी इट पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इनकी प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन रहता है कि क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, क्या परपेंडिकुलर होते हैं, क्या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, एंड सो ऑन। तो यू कैन क्रिएट अ वेरी इजी टू रिमेंबर टेबल लाइक दिस। अगर आप जब पढ़ रहे थे तब भी आपने ये प्रिपेयर करा हुआ है, नथिंग लाइक इट, ग्रेट। बट अगर नहीं करा, इस तरह की टेबल पहली बार देख रहे हो, तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दे आर नॉट परपेंडिकुलर, दे आर नॉट इक्वल, दे डोंट नेसेसरली बाइसेक्ट एंगल्स। अच्छा, पैरेललोग्राम का ही चाइल्ड फिगर या सब फिगर रेक्टेंगल रोम्बस है, रेक्टेंगल रोम्बस के हाइब्रिड से स्क्वायर मिल रहा है। सो ऐसी आप हायरार्की भी बना सकते हो जो हम रेगुलरली ज्योमेट्री की क्लासेस में कवर करते हैं। सो अंडरस्टैंड, स्क्वायर विल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, एंड रेक्टेंगल एंड रोम्बस बोथ विल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको हायरार्की क्लियर है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों में ट्रू है। इनफैक्ट रेक्टेंगल की डेफिनेशन ही है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose adjacent angles are equal and rhombus is a parallelogram whose adjacent sides are equal। तो आप प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत इजी होगा। बाइसेक्ट तो हर किसी में करेंगे बिकॉज पैरेललोग्राम में ही कर गए, और नीचे के चाइल्ड फिगर सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करेंगे पेरेंट फिगर की। स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज ट्रू होंगी। इक्वल किस किस में होंगे? सो इक्वल होंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर में। परपेंडिकुलर किस में होंगे? रोम्बस और स्क्वायर में। और इसीलिए हाफ d1 d2 जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का या एरिया ऑफ रोम्बस का, वो दोनों जगह एप्लीकेबल है बिकॉज डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। रेक्टेंगल के एरिया के लिए आप हाफ d1 d2 नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस तरह के माइंड मैप्स क्रिएट करो, टेबल्स क्रिएट करो, हायरार्की के डायग्राम्स बनाओ, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर ज्योमेट्री बट आल्सो ट्रू फॉर लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स एज वेल। आगे बढ़ते हैं। थिंक ऑफ क्वेश्चन टाइप्स दैट रिलेट टू मीडियन। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी सीन कि एक क्वेश्चन आया जिसमें दिया एडी इज द मीडियन। जैसे ही क्वेश्चन में दिखे एडी इज द मीडियन, इमेजिन दिस इज द ट्रायंगल, एडी इज द मीडियन, जी इज द सेंट्रोइड, तीनों मीडियंस बने हुए डायग्राम में। क्वेश्चन में जैसे ही मीडियन आएगा, यू शुड बी एबल टू इमीडिएटली रिकॉल
all the different 8-10 properties जो आपने पढ़ी हो. I'll request you कि आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें. राइट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज दैट यू कैन रिकलेक्ट जैसी टर्म मीडियन आएगा. स्टार्ट करते हैं आप. सो एक प्रॉपर्टी जो आई एम श्योर सबने रिकॉल कर ली होगी, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. तो ये माइंड मैप्स आप खुद अपनी फॉर्मूला बुक में बना के रख लें. मीडियन सेंटर में लिखा, मीडियन की सारी प्रॉपर्टीज उसके हेड साइड रिकॉल करके लिख ली. यूज दिस बुक फॉर रिवीजन. बिलीव मी, मीडियन का क्वेश्चन आएगा, विल बी एबल टू सो टू से क्लिक, वो क्लिक हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना. लोकेशन ऑलवेज इनसाइड. और क्या प्रॉपर्टी होती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस. अगर मीडियन साइड लेकर आप ट्रायंगल से एरिया कैलकुलेट करोगे तो दैट इज 3/4 ऑफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल. सम ऑफ मीडियंस की लेंथ का सम जो है वो पेरीमीटर से तो ऑब्वियसली छोटा आएगा और 3/4 ऑफ पेरीमीटर से बड़ा आएगा. रेशियो ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन टू द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स. ये रेशियो कितना आता है? 3/4. सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू 6 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. मतलब अगर आप ये जी के थ्रू 6 ट्रायंगल्स छोटे वाले ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक एएफजी, एक एफजीबी, एक जीबीडी एंड सो ऑन, ऐसे जो 6 ट्रायंगल्स हैं सबके एरिया इक्वल है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. कैट में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन भी आए हैं इनको लेकर. देन आई होप इस थ्योरम का नाम याद होगा. परफेक्ट. अपोलोनियस थ्योरम. AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC का स्क्वायर, विच इज ईदर BD और DC बिकॉज D इज द मीडियन. तो ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम आपने कवर करी होगी, फेमसली कॉल्ड एज अपोलोनियस थ्योरम. टिपिकली जब कैट पहली बार ऑनलाइन हुआ 2009, तब से लेकर 2016 तक, बिलीव मी, हर कैट में एक ना एक क्वेश्चन लेंथ ऑफ मीडियन को लेकर आया है. 2009, 10, 11 में एक्चुअली कैट एग्जाम वो स्प्रेड अक्रॉस 1 और 1.5 मंथ्स. बहुत सारे अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होती थी, तो बहुत फ्रीक्वेंटली लेंथ ऑफ मीडियन को लेकर क्वेश्चन आया दैट कैन इजीली बी सॉल्व यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम. आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली रेशियो ऑफ द 1/3 ऑफ द लेंथ, AG का स्क्वायर, BG का स्क्वायर, CG का स्क्वायर, इसका अगर रेशियो लें फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, दैट कम्स आउट टू बी 1/3. अगर ये प्रॉपर्टीज आप सारी रिकॉल कर पाए, यू आर ऑन द राइट ट्रैक फॉर योर कैट प्रिपरेशन. एक अच्छा चेक हो गया इस स्लाइड से कि क्या हमें ये सारी प्रॉपर्टीज याद थी. अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं. सर जितनी याद थी वो तो सारी रिकॉल कर ली, बट इतनी सारी पता ही नहीं थी, तो देन मे बी वी आर नॉट प्रिपेयरिंग इन द राइट मैनर. राइट गाइडेंस शायद नहीं मिल रहा है. और अगर ये सारी पढ़ी हुई थी बट रिकॉल नहीं कर पाए, देन यू नो व्हाट टू डू. ये रिकॉल करके एक बार अपनी फॉर्मूला बुक में लिख लेना है और फिर रेगुलरली रिवीजन करना है. इसी से एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कैट 2017 में आया है. अभी जो हमने स्लाइड देखी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिच हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू टू क्रिएट माइंड मैप्स जो हमने डिस्कस करे. From a triangle ABC of sides, this triangular portion GBC is cut off where G is the centroid. अब G centroid है, imagine GBC कट कर दिया है. GBC कट कर दिया, GBC का एरिया कितना होगा? सबका छोटे ट्रायंगल्स का एरिया x है, GBC का मिला के होगा 2x और बचे हुए का कितना होगा? 4x. टोटल 6x एरिया था सारे बड़े ट्रायंगल का. They're asking remaining portion of triangle ABC, उसका एरिया कितना है? तो कहना ऐसे डायरेक्टली बोल दे 2/3 होगा, 1/3 एरिया GBC ले लेगा. ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, हीरोज फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे ट्रायंगल के एरिया का. हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालो ट्रायंगल का, उसका 2/3 कर दो, you'll get your answer as choice B. A sitter, I'll say an extremely easy question. एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो गया जस्ट इस स्लाइड का डिस्कशन करके. ये अगर आप अक्रॉस टॉपिक्स करोगे, इमेजिन द काइंड ऑफ आउटपुट दैट यू विल गेट. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट पार्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट, आई थिंक इस पूरे डिस्कशन का शायद सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है previous year's paper. Think of it as the go-to process for you to improve your scores and get a very good percentile in CAT. 2017 से अगर हम पेपर्स की बात करें तो ऑफिशियली अवेलेबल है, एक्चुअल आंसर की इसके साथ अवेलेबल है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है. 2017 से 2021 अक्रॉस स्लॉट्स आपके पास 12 क्वेश्चन पेपर्स हैं और 2022 के 3 स्लॉट्स हैं अलग. आई रिकमेंड कि 2022 के जो 3 पेपर्स हैं, यू कैन कीप देम to be taken as actual CAT के mocks maybe 1 week before the actual CAT. तो मे बी 15th नवंबर के बाद वाले टाइम से 26 नवंबर तक CAT 22 के जो 3 स्लॉट्स के पेपर हैं, आई रिकमेंड कि वो आप आखिरी के 10 दिन, आखिरी के 1 वीक के लिए छोड़ दें, उनको एक्चुअल मॉक की तरह अटेम्प्ट करें, बाद में एनालिसिस करें, ताकि प्रिपरेशन का एक अच्छा चेक मिल पाए इन द लास्ट फ्यू डेज. बट 2017 से 2021 के जो पेपर्स हैं उसमें आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उनको इस तरह यूज करें that they are your source for preparing for the particular subject.
आरसी सारे करने हैं, सारे सेट सॉल्व करने हैं डीएलआर के, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी। कई बार जब हम मॉक्स की तरह अपीयर करते हैं वी टेंड टू लीव डिफिकल्ट सेट्स, इनमें नहीं करना है। मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर्स पेपर 2017 से 2021 हर क्वेश्चन वेदर इट इज फ्रॉम क्यूए, डीएलआर, इंग्लिश, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको पता है, उसकी ऑल्टरनेट अप्रोचेस पता है। कंसिडर दिस एज अ मैंडेटरी टास्क कि आपको पिछले 6 सालों के पेपर्स पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ एक एक सेट, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू टीच इट टू समवन इफ रिक्वायर्ड। इस स्पिरिट से अगर करोगे, बिलीव मी, यू लैंड अप विद अ वेरी गुड कैट परसेंटाइल। पढ़ते हैं आगे। द रीजन आई एम रिकमेंडिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर, आप क्यूए का सेक्शन स्पेसिफिकली देखो। कैट 2017 स्लॉट 2 क्वेश्चन है रेसेस को लेकर टीएसडी का। इन अ 10 किलोमीटर रेस एबीसी ईच रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी। 2019 स्लॉट 1 में सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेस कोर्स पूछ लिया। कैट 2020 स्लॉट 2 अगेन द डिस्टेंस ओवर विच द रेस हैज बीन कंडक्टेड। दिस इज अ लिविंग प्रूफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कैट में क्वेश्चन टाइप्स रिपीट हुए हैं। 2017, 2019, 2020, you never know, again a question on race might come in cat 23, who knows। नहीं भी आया तो भी दिस इज अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, बिकॉज दैट इज द बेस्ट होप दैट वी हैव करेंटली। तो ये क्वेश्चन टाइप्स आई थिंक ओरल डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं रिपीट करूं, जब भी आपको लेंथ ऑफ रेस निकालना है तो फॉर्मूला बहुत इजी सा है, ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। लेंथ ऑफ रेस एल is AB upon A plus B minus C. What is A? The distance by which A beats B. What is B? The distance by which B beats C. What is C? The distance by which A beats C. तो अगर एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला आप नोट कर लें, लेंथ ऑफ रेस L इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तीनों क्वेश्चंस विद इन अ मिनट आप सॉल्व कर सकते हो। रिपीटेशन वाला पार्ट आई होप इज क्लियर। सिमिलरली लुक एट दिस क्वेश्चन टाइप जहां पर मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो रहा है कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो नंबर व्हेन इट्स सम विद रेसिप्रोकल देन द मिनिमम वैल्यू इज 2। x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आई एम श्योर ये आपने अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। अगर एक पॉजिटिव नंबर है x तो x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। तीनों क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x। 2 की पावर माइनस एक्स कैन बी रिटन एज 1/2 की पावर x। तो ये नंबर हो गया a प्लस 1/a के फॉर्मेट का। मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मिनिमम वैल्यू 2 होगी 2 इंटू कॉस का फंक्शन। अब कॉस के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। तो देन विल से 2 इंटू 1 और वहां पे मिनिमम 2 एक ही पर्टिकुलर वे से जस्टिफाई करते आएगा। सेम एक्सप्रेशन कैट 2020 स्लॉट 1 में यूज हो गया है। यहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, बट अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 माइनस एक्स वाले फॉर्मेट में यू विल गेट a प्लस 1/a वाला फॉर्मेट, नंबर और इट्स रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आपको x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनाता आएगा, स्प्लिट करके लिखोगे तो x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 का फॉर्मेट मिल जाएगा जिसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्वेश्चन टाइप। मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स बहुत ईमानदारी से सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मॉक एनालिसिस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स। किस फ्रीक्वेंसी से मॉक्स दें? आप जितने ज्यादा मॉक्स दे सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर बैकएंड का प्रिपरेशन एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनालिसिस, उतने मॉक्स दो। as long as you don't feel overburdened in the sense कि आप एक लेवल की बोर्डम पे रीच कर जाते हो कि अब मैं थक गया हूं मॉक्स दे देके, जब तक वो स्टेट नहीं आ रहा है तब तक आपको मॉक्स देते जाना है। इन अ मोर जनरल सेंस आई विल से कि अगर आप हफ्ते में एक मॉक से 2 मॉक देते हो दैट इज गुड इनफ। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट मोर देन अपीयरिंग फॉर मॉक्स इज द वे यू एनालाइज एंड द वे यू प्रिपेयर एट द बैक एंड। तो एनालिसिस में बहुत लोग ये करते हैं कि क्वेश्चन देखा, उसका सॉल्यूशन नहीं बन रहा था, सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया, डन। फॉर्मूला था तो फॉर्मूला नोटबुक में लिख लिया, इसके बाद छोड़ दिया। वो क्वेश्चन आपसे इन द फर्स्ट प्लेस क्यों नहीं बना? क्या वो टॉपिक का रिवीजन करने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट दैट टॉपिक का बेसिक फंडामेंटल्स ओवर एंड ओवर अगेन, यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो मल्टीपल चीजों का, इनफैक्ट वी माइट हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन हाउ टू एनालाइज मॉक्स सम टाइम लेटर, बट अभी के लिए अंडरस्टैंड दिस पार्ट की एनालिसिस ऑफ मॉक्स अगर आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो और उसके बैकएंड की प्रिपरेशन भी कर पा रहे हो तो जितने ज्यादा मॉक्स होगे जनरली दैट इज गुड। बट रिमेंबर, आपको सही टाइम पे पीक करना है। डोंट मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन कि आपने इतने मॉक्स अक्टूबर एंड तक लिख लिए, नवंबर फर्स्ट वीक में लिख लिए हैं दैट यू आर टायर्ड
कि अब कैट आने तक तो आई एम लाइक कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, बट जस्ट वर्ड ऑफ कॉशन, ट्राई एंड पीक एट द राइट टाइम। मॉक्स में स्कोर फ्लक्चुएट हर किसी के होते हैं। इफ समबडी सेज कि मेरे कंसिस्टेंटली अच्छे स्कोर आते हैं, देन दैट पर्सन इज लाइंग। दैट्स इट। हर किसी के मॉक्स में स्कोर फ्लक्चुएट होंगे। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू अंडरस्टैंड आवर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, वर्क ऑन देम इन द बैक एंड। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव शेयर्ड फ्रॉम माय डेज। सो ये 26 जून 2009 की डेट का मेरा नोट है इन माय ओन रेड बुक ऑफ कैट, important learnings from a mock that I appeared. So I've written, when attempting a caselet in IRA, at that point in time, interpretation and reasoning ability was the name given to DLR section. So DLR में, when attempting a caselet, solve it completely, give time and be patient. Answers will come, read again and understand. I think this is something that would be common to a lot of us till date. तो ऑल्दो ये काफी पुराना नोट है मेरे खुद के नोट्स का, जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट माई सेल्फ, बट अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन एज वेल। जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो इस तरह के इनपुट्स या लर्निंग्स आपको अपनी बुक में लिखनी है कि इज इट समथिंग दैट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट मॉक। फॉर एग्जाम्पल, रीड क्वेश्चंस कामली, डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय ह्यूज लार्ज क्वेश्चंस, रीड देम एंड अंडरस्टैंड दे मे बी सिटर्स। कई बार होता है कि हम बड़ा सा सेट देख रहे हैं, छोड़ देते हैं। When answering for a ratio, always look for approximating. कुछ एक क्वेश्चंस में हो जाता है कि अप्रोक्सीमेट करते तो ऑप्शन मार्क कर देते, ऑप्शंस का थॉट ही नहीं दिया है, अप्रोक्सीमेशन नहीं सोचा। वर्बल एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, उस टाइम पे दिस वाज द नेम दैट वाज गिवन टू द वीआरसी सेक्शन। वर्क टू डू एसेंस ऑफ पैरा क्वेश्चंस में I was not getting a lot of accuracy. FIJs, fact inference judgment वाले questions में I was getting some questions wrong, and practicing RC on PC online. That was the first time CAT went online. People had no clue कि ऑनलाइन स्क्रीन पे पढ़ते कैसे हैं, फोकस कैसे मेंटेन करना है। वो पेन पेपर की इतनी ज्यादा आदत लग चुकी थी that this was another part that students had to work on. I'm sure by now you have already been accustomed to reading online. Last message is, I think, something which is true till date. Be always high on concentration. When getting bored, lazy, mentally inactive, not working properly, switch yourself. और ये मैं पर्सनली टिल डेट फॉलो करता हूँ। जब भी खुद मॉक्स लिखता हूँ, एक्चुअल एग्जाम्स लिखता हूँ, प्लीज डू इट एज वेल। वेन एवर यू फील कि देर इज अ सेंस ऑफ लेजीनेस कमिंग इन while you are solving the mock, बहुत बार होता है कि VRC 40 मिनट बहुत एनग्रॉसिंग RCs थे, थक गए हैं, DLR का सेट सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे एंथु से स्टार्ट करा था। कम 15-20 मिनट्स विल स्टार्ट फीलिंग कि मुझे पता ही नहीं पड़ा आखिर के 10 मिनट कहाँ चले गए, मैं एक ही सेट पर अटका रह गया। तो immediately switch yourself, take a pause for 5 seconds, maybe look here and there, have water, take a break, go to the loo, come back, make yourself back at home, switch yourself to the levels of concentration that were there earlier. ये बहुत बार होगा कि आप फ्लो में रियलाइज नहीं करते हो कि कहाँ टाइम चला गया। मेक श्योर दैट यू आर वेरी अवेयर, अवेक एंड हाई ऑन कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स जब भी आप सेट सॉल्व करें। इमेजिन दिस हैपेंस अ लॉट फॉर पीपल जब थर्ड सेक्शन आता है। 40 मिनट इंग्लिश में स्ट्रगल हो गया, उसके बाद DILR में जनरली मॉक्स में 2 सेट बन जाते थे, अभी एक्चुअल कैट में तो एक ही बनाए, दूसरे के कुछ क्वेश्चंस हुए और अब QA आ रहा है। तो हमारे पिछले 80 मिनट का जो पास्ट हुआ है, दैट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन आवर करंट प्रेजेंट फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स ऑन QA। जब ये होगा तो यू विल फील अ सेंस ऑफ टायर्डनेस कि अब QA में जो पहले मॉक्स में स्कोर्स आ जाते थे वो भी नहीं आ रहे, क्वेश्चंस जो डुएबल लग रहे हैं प्रॉफिट लॉस के वो भी नहीं बन रहे हैं। मेक श्योर दैट यू स्विच योरसेल्फ, टेक अ पॉज फॉर 5-10 seconds, then come back again with fresh energy and enthusiasm. Believe me, it works. Try it out in mocks. I'm sure you'll share the same feedback. Similarly, और feedbacks 28 June का feedback लिखा हुआ है कि again the similar learnings for me. Case difficult है तो give time. Don't make haste in English. Give time to read the RC in full, not just scanning and so on. आपके लिए इंडिविजुअली जो भी कस्टमाइज फीडबैक आपको मॉक में मिले, प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट इट इन योर ओन हैंड राइटिंग। डू दिस एनालिसिस, खुद से ये एनालिसिस कर लिया करो। बिलीव मी, यू विल रियलाइज द रिजल्ट्स इन टाइम टू कम। बहुत बार लगता है कि सर पिछले मॉक में बहुत एनालिसिस करी थी, इस मॉक में तो उसके कारण और स्कोर गिर गया। तो अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन। If two things are correlated, does not mean one is the cause of other. एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि सर VRC के लिए बहुत एफर्ट डाला, पढ़ाई करी और अगले मॉक में तो स्कोर और कम हो गया पिछले हफ्ते से। तो इनफैक्ट दे आर एबल टू कोरिलेट देन कि जब मैं पढ़ाई करके मॉक देता हूँ तब स्कोर कम होता है। What is the fallacy here? Fallacy is that you are relating, yeah, you are considering correlation to be the causation. दो चीजें इनफैक्ट
दिस इज अ वेरी कॉमन फेलेसी। बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं ब्लैक कलर का टी शर्ट, मेरा फेवरेट कलर है, अगर वो पहन के जाऊंगा तो स्कोर अच्छा आएगा। टिपिकल सुपरस्टिशंस कि अगर मैं हाथ में अंगूठी पहन के जाऊंगा, कुछ कड़ा है मेरे पास, पर्टिकुलर रिस्ट वॉच, कलर ऑफ योर शर्ट, टी शर्ट, दीज आर कॉमन फेलेसीज। हमारे साथ 4 बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने कार धोई है तो बारिश आ गई है। डज दैट मीन कि मेरे कार धोने से बारिश हो रही है? दे आर को रिलेटेड मे बी, बट दे आर नॉट डेफिनेटली एन एग्जाम्पल ऑफ कॉजेशन। तो अंडरस्टैंड कि जब भी हम मॉक्स में इस तरह का आउटपुट लेके चल रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे स्कोर्स कम हो रहे हैं, तो दे आर को रिलेटेड, बट दैट इज नॉट द कॉज। कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। ऑब्वियसली डज नॉट मेक सेंस कि मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा या मैं रिवाइज करके नहीं जाऊंगा। तो आई होप कि इस तरह की मॉक की एनालिसिस आप अपने लेवल पे कर पाओगे, कस्टमाइज टू योर ओन वे ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक्स विच विल यील्ड रिजल्ट्स। आगे बढ़ते हैं। So finally, last few general tips and then we'll end this session. One important and very cliched, and the reason it is cliched, it is so important. Do not waste time. ईमानदारी से खुद सोच के देखो कि आप अपने दिन भर के स्केड्यूल में कितना टाइम प्रोडक्टिव रहते हो और कितना टाइम आप वेस्ट करते हो या खुद को चीट करते हो ये कह के कि पढ़ तो रहा था बट ईमानदारी से पढ़ाई नहीं हुई उस टाइम पे। वट एवर बी द रीजन, नींद अच्छी नहीं हुई थी, दोस्तों से बात करना था, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, कुछ वीडियोस देखते हो, मूवीज या टीवी सीरीज की आदत है, चैटिंग ऑन फोन और डिस्कसिंग थिंग्स विद फ्रेंड्स, विला टाइम बहुत सारा हम इधर उधर स्पेंड कर रहे हैं, वट एवर बी द कॉज, आइडेंटिफाई कि आप अपनी जिंदगी का कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो और जिसके कारण प्रोडक्टिविटी सफर कर रही है। अगर वो आइडेंटिफाई कर लोगे देन स्टार्ट रिड्यूसिंग दैट टाइम ग्रेजुअली। आई एम प्रीटी श्योर ऐसा नहीं होगा कि कल तक तो मैं 1 घंटा फोन पे बात करता था, अब अगले दिन से मैं 1 भी मिनट बात नहीं कर रहा हूँ फोन पे, नॉट पॉसिबल। बट ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू रिड्यूस दिस इफ यू आर एबल टू एक्नॉलेज द फर्स्ट थिंग टू डू इज बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। बी ब्रूटली ऑनेस्ट। ईमानदारी से खुद की एनालिसिस कर लो कि आप अभी क्या चीजें करते हो जो आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रही है। आइडेंटिफाई देम, मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि आप आगे से इन चीजों को ओवरकम करने का थॉट दोगे। To help you with this, I strongly recommend give 5 minutes for oneself. Let me explain it this way. बहुत बार हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं कि क्या करें, प्रॉब्लम में फंस गए। बी योर ओन एक्सपर्ट, प्ले द ड्यूअल रोल। प्रॉब्लम भी आप ही रेस करो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि सर ये हो रहा है, गिव द सोल्यूशन टू योर ओन सेल्फ। आप खुद ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। 5 मिनट, इंग्लिश में टर्म है सोलिलोक्यू, SOLILOQUY। Soliloquy comes from the two combination of roots sol and lock. तो soliloquy is self talk। खुद से 5 मिनट बातें करो। 5 मिनट बात करके you will be able to realize a lot of things about yourself. You will be able to guide your own self. Believe me, it works. ये आप करके देखो। 5 मिनट अपनी प्रॉब्लम्स, it may not always be problems, just have a discussion with yourself. How is life going? क्या आप वो चीज कर पा रहे हो जो आप सोच के बैठे हो? क्या हर दिन की प्रोडक्टिविटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है? आर यू फीलिंग गुड अबाउट योर ओन सेल्फ? कैन यू कंटिन्यू द सेम मोमेंटम? इफ नॉट, क्या चैलेंजेस है, उनको कैसे ओवरकम करें? रेज द प्रॉब्लम टू योरसेल्फ, आंसर इट योरसेल्फ। नेक्स्ट पार्ट इज हेल्थ एंड स्लीप। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं आखिरी के 50 दिन में ऑन मेकिंग श्योर दैट दे स्टे हेल्दी एंड दे गेट गुड स्लीप। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप? आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एज एन इंडिविजुअल। ऑब्वियसली 10 घंटे दिन में सोना इज a no-brainer. That is not something that anybody will recommend. But to each his own. There are some people who sleep for good 8 hours and they feel कि वो बहुत अच्छा productive time अपना निकाल पा रहे हैं बचे हुए दिन में से. There are some people who are able to sleep for just 3-4 hours. Typical B school के first trimester में you hardly get 3 to 4 hours of sleep. तो वो वहाँ का environment वैसा रहता है and you are able to cope up with that because of high levels of caffeine in your diet. अभी घर पे रहते हुए या हॉस्टल में रहते हुए क्या आप वो एनवायरमेंट रेप्लिकेट कर पाओगे? अगर नहीं तो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन योर हेल्थ। 6-7 hours ऑफ स्लीप इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, बट एज आई सेड टू ईच इज ओन। आप अपने लेवल पे डिसाइड करने की कितनी स्लीप जरूरत है। एक और छोटा सा सजेशन दैट आई रिकमेंड इज फिजिकल एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए। आई नो अगेन बहुत क्लीशेड चीजें बोल रहा हूं, बट जस्ट ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट दिस। 5 मिनट के लिए इफ पॉसिबल आफ्टर अ स्मॉल वार्म अप रन वेरी फास्ट। मे बी 1 मिनट के लिए जितना तेज भाग सकते हो, रन एट द पीक ऑफ योर स्पीड। इमेजिन कि दुनिया में कुछ और करना ही नहीं है, बस भागना है हमें। रन एट द पीक ऑफ योर स्पीड, कि इससे ज्यादा तेज तो मैं भाग नहीं सकता हूं। 1 मिनट के लिए कर लो एंड देन स्टॉप एंड फील योर ओन ब्रेथ। You will realize the kind of positive feeling that you will have for the entire day will make your day like anything.
वो जो फीलिंग है, टिपिकली इट इज कॉल्ड एज अ रनर्स हाई, यू नो, हमारे हार्मोन्स इस तरह के रिलीज होते हैं वेर वी फील दैट, यू नो, वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड, इट्स अ हैप्पी हार्मोन. सो वो रनर्स हाई कैसे लाएं? 1 मिनट के लिए सुपर फास्ट स्पीड में दौड़ लेना है. If that doesn't work, maybe do something on the lines of yoga or meditation, whatever works for you. But make sure कि आप health और sleep के लिए टाइम दें. टाइमर फॉर सॉल्विंग, वेरी इंपॉर्टेंट टिप. जब भी आप आरसी सॉल्व कर रहे हैं, डोंट सॉल्व आरसीज विदाउट अ टाइमर नियर यू. एलआर के सेट सॉल्व कर रहे हैं टाइमर के बिना. इनफैक्ट टाइमर शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. क्वेश्चन क्यूए का भी सॉल्व कर रहे हैं, 3 मिनट 4 मिनट का टाइमर लगा दो, इसके अंदर सॉल्व होना चाहिए. आखिरी के 50 दिन में ये आपकी आदत बन जाना चाहिए दैट टाइम बेस्ड प्रेशर तो हम अब यूज टू हो गए, सिस्टम का ही पार्ट है, इट्स इन आवर ब्लड. क्या कि हमारे हेड में टाइमर चल ही रहा है, सेट लिया है 10 मिनट के अंदर क्रैक होना चाहिए. क्यूए का क्वेश्चन है 180 सेकंड्स के अंदर क्रैक होना चाहिए. नहीं हो रहा है तो देन we'll look at the solutions, try and find alternate ways and so on. Make sure that you use a timer for solving everything that you do from now on. Similarly, last message on biological clock. 25th October is when you will get the admit cards for CAT. You will know the exact time slot कि आपका सुबह 10 से 12 है, दिन में 2 से 4 है, या शाम को 6 से 8 वाला स्लॉट है. जो भी स्लॉट कैट अथॉरिटीज डिसाइड करती है, गेट टू नो दैट स्लॉट. मेक श्योर कि आगे से सारे मॉक्स आप उसी टाइम स्लॉट में दोगे. अपना पूरा डेली का साइकिल, रूटीन, स्केड्यूल इन्हीं लाइंस पे बनाओगे सो दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दोस 2 आवर्स जो आपका एक्चुअल कैट का टाइम स्लॉट है. यू हैव टू बी एट योर मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट अवेक, मोस्ट अवेयर, बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन दोस 2 आवर्स. वो कैसे करेंगे? जैसे ही आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, आपका पूरा स्केड्यूल शुड बी कस्टमाइज कि आप अपने बेस्ट पे रहो उन 2 घंटे में. हर मॉक उसी टाइम पे देना है जो आपके एक्चुअल कैट का टाइमिंग रहेगा. ट्राई एंड डू दिस एज फार एज पॉसिबल, यू विल फाइंड द डिफरेंस. एंड द लास्ट पार्ट इज replicating cat environment. I'll take an example to illustrate this part कि ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर दोज ऑफ यू वुड बी रिपीटिंग कैट, यू वुड नो दिस. जो पहली बार कैट अपीयर कर रहे हैं शायद आपको आइडिया भी ना हो. जब आप कैट लिखने जाओगे तो लेट सपोज आपका स्लॉट है 10 o'clock का मॉर्निंग में. What is the time that you think you will get seated in front of your system? 10 बजे आपका कैट शुरू होगा, 10 से 12 2 घंटे का पेपर है. 10 बजे के पहले कितनी देर पहले आप अपने सिस्टम पे बैठ जाओगे आफ्टर ऑल द बायोमेट्रिक्स एंड स्टफ? 9:30, 9:45? नो, यू टिपिकली गेट सीटेड समवेयर अराउंड 9 to 9:15. 9 से 9:15 के बीच में आप अपनी डेस्क पे बैठ जाओगे. अगले 45 से 50 मिनट आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है. You have to do nothing. And believe me, doing nothing is the most difficult thing when you are seated in front of the system and you're not allowed to even play with mouse and keyboard because डर है कि वो सिस्टम लॉक नहीं हो जाए. तो आपको 45 मिनट खाली बैठना है, कुछ नहीं करना है, और उस 45 मिनट के बोर्डम के बाद आपका वीआरसी सेक्शन चालू होगा. तो देन व्हाट डू यू डू देन? आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते उस 45 मिनट में. तो आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैट के लिए तब भी लेके जानी है कि उन 45 मिनट्स में आप क्या करोगे. मे बी मेंटली स्क्वायर्स का कैलकुलेशन करोगे हर 10 मिनट में, कुछ स्पीड मैथ्स की टेक्निक्स दिमाग में सोचोगे. विल कवर ऑल दैट मे बी व्हेन द कैट कम्स नियर. बट आई एम सेइंग रेप्लिकेटिंग द कैट एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट. जब आप मॉक्स दो घर पे, अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, ट्राई एंड डू दिस कि 15 मिनट कुछ नहीं करना. मॉक के पहले लैपटॉप के सामने बैठना है, लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाना है, नो प्रेसिंग ऑफ एनी कीज. 15 मिनट, 20 मिनट, आई नो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर लॉट ऑफ यू, but then try it in few mocks, you will realize the difference, और actual CAT दिन के लिए आप better prepared रहोगे. Similarly, जब CAT चालू होगा, VARC का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर रन करना चालू होगा, पहले 5 मिनट बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है एक्चुअल CAT में. Why? Because you'll be seated in large halls across the system and the invigilators will keep on shouting, everybody please start the exam, click on I am ready to begin, click on next. आप अपनी एग्जाम स्टार्ट करिए, माइक पे अनाउंस होता रहेगा पहले 5 मिनट में वीआरसी के सेक्शन में. I know a lot of people are very finicky about the kind of environment that they appear in their mocks. घर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे रूम में कोई नॉक भी नहीं करेगा, घर की डोरबेल भी नहीं बजनी चाहिए, किसी का फोन नहीं रिंग होना चाहिए, nobody is allowed to talk when I'm appearing in mock. इस तरह का अगर आपका लेवल ऑफ फिनिकी है, then maybe you will have a very bad day in the actual CAT exam. क्योंकि कैट में तो ये डिस्टर्बेंसेस होते हैं. पहले 3-4 मिनट तो माइक पे अनाउंसमेंट किसी ना किसी चीज का होगा, किसी को पेन नहीं मिला होगा, कोई इन्वेटर को बुला रहा होगा, माइक पे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट चलते रहेंगे. समटाइम्स यू कैन नॉट ऑल्सो कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द प्लेस वेयर यू गेट सीटेड. हो सकता है विंडो के पास की सीट पे हो और बाहर, यू नो हाउ इट हैपेंस इन इंडिया,
है ना? तो बाहर कुछ रैली निकल रही है एंड देयर आर लाउड स्पीकर्स और डीजे बीइंग प्लेड एंड यू आर गेटिंग डिस्टर्ब, ऑल्दो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा बट यू विल फील कि यू आर गेटिंग इरिटेटेड। आपके ऊपर फैन चल रहा है, उसकी नॉइज आ रही है, या एसी चल रहा है, एसी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज जस्ट नियर यू। एनीथिंग कैन डिस्टर्ब यू। मेक श्योर कि जब आप मॉक्स दे रहे हैं तो आप इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखें ऑफ रेप्लिकेटिंग द कैट एनवायरमेंट। लेट फैमिली मेंबर्स बिहेव नॉर्मली वेन एवर यू आर अपियरिंग फॉर मॉक्स एट होम। घर पे बातें हो रही हैं, फोन कॉल्स हो रहे हैं, बेल रिंग हो रही है, आपका फोकस इतना अनडिवाइडेड होना चाहिए कि इट शुड नॉट मैटर, आपको रियलाइज भी नहीं होना चाहिए कि अच्छा बेल बजी थी। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। बट अगर आप सीधे कैट में इस एनवायरनमेंट से जाते हो कि मुझे तो मेरे घर जैसा रूम मिल जाएगा, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट सी कि जो आपकी स्क्रीन है, जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है, उस पे पेन से स्क्रिबल करा हुआ है, बिकॉज वही सेम सिस्टम यूज होता है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। जब बैंकिंग एग्जाम्स होती है, आरबीआई की एग्जाम्स के लिए, कैट के लिए, जीमैट के लिए, जीआरए के लिए, वो सेम सिस्टम यूज हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने पेन से मार्किंग करी है, वो इरेज करी है जहां तक हो पाए, बट यू विल फाइंड सम ऑफ द मार्किंग्स ऑन द सिस्टम एज वेल एंड यू विल फील कि मेरा तो एप्पल की आदत है मुझे मॉक देने की, और अब यहाँ तो ये सिस्टम मिल रहा है जिसके ऊपर क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है। These things are beyond your control. Try and replicate such environments so that on the D day, you feel ki I don't care what happens, I'm going to get the best percentile. So I think I've spoken enough. I'll take your leave now. I hope you implement some of these strategies and hope that you will get all the coveted calls that you aspire for. Work hard and it will happen. I'll take a leave. Thank you. Bye.